Good morning, class 12th. I hope all of you are safe at your home. Let's begin with the second story of this chapter 2, Lost Spring, from Flamingo book. And in the first story, we have already discussed about how this poverty and the circumstances of slum children or ragpickers affect their life totally. And in the second one, this one, I want to drive a car, we'll discuss about the child labor. So basically there are two themes. So first theme we have already discussed, and let's start with the second theme of the chapter, or the second story of the chapter. So today I'll start your chapter from here with this paragraph. Mukesh insists on being his own master. I will be a motor mechanic, he announces. Do you know anything about cars? I ask. So here आपको थोड़ा सा इस सेकंड स्टोरी जो है उसकी आपको हेडिंग से ही यू कैन अंडरस्टैंड दैट आई वांट टू ड्राइव अ कार, कि एक व्यक्ति है जो ड्राइव करना चाहता है. सो हमें नाम दिया हुआ है मुकेश इंसिस्ट ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर. मुकेश एक ऐसा बॉय है जो अपना खुद का मालिक खुद रहना चाहता है. आई विल बी अ मोटर मैकेनिक ही अनाउंसेस. वो कहता है मैं एक मोटर मैकेनिक रहना चाहता हूँ. डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार्स आई आस्क. सो जो राइटर हैं चैप्टर के वो उनसे पूछ रहे हैं दैट क्या तुम्हें कार्स के बारे में कुछ पता है. आई विल लर्न टू ड्राइव अ कार ही आंसर्स. वो जवाब देता है कि आई विल लर्न टू ड्राइव अ कार. लुकिंग स्ट्रेट इन टू माई आइज. ऐसा वो उनकी आंखों में बिल्कुल नज़र से नज़र मिलाते हुए कहता है. हिज ड्रीम्स लूम्स लाइक अ मिराज amidst the dust of streets that fill his town Firozabad, famous for its bangles. Every other family in Firozabad is engaged in making bangles. It is the center of India's glass blowing industry, where families spent generations working around furnaces, welding glasses, making bangles for all the women in the land, it seems. So here students, जो हमारे चैप्टर की राइटर हैं वो एक बच्चे मुकेश से या एक लड़की एक बॉय मुकेश से पूछती हैं दैट क्या तुम्हें कार चलाना आती है. वो उनकी आंखों में स्ट्रेट देखकर बोलता है, आई टू आई कॉन्टैक्ट से. हिज ड्रीम्स लूम्स लाइक दैट आई विल लर्न टू ड्राइव अ कार ही आंसर्स, लुकिंग स्ट्रेट इन टू माई आइज. हिज ड्रीम्स लूम्स लाइक अ मिराज amidst the dust of street that fill his town Firozabad. So उसके ड्रीम्स कैसे लग रहे हैं. इट लूम लाइक मीन्स appear like imagination, and here amidst is like surrounded by the dust of street that is fill his town Firozabad. तो उसके ड्रीम्स जो हैं वो उसकी इमेजिनेशंस में दिखते हैं. एंड वो ऐसे टाउन से बिलोंग करता है विच इज़ फेमस फॉर बैंगल्स, दैट इज़ फिरोज़ाबाद. Every family in Firozabad is engaged in bangle making. And now in this paragraph, the writer of the chapter, she is talking about that किस तरह फिरोज़ाबाद का हर परिवार जो है बैंगल मेकिंग के बिजनेस में एंगेज है. इट इज़ द सेंटर ऑफ इंडियाज़ ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री, बिकॉज फिरोज़ाबाद जो है इंडिया की ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री का सेंटर है. Where families have spent generation working around furnaces. जहाँ पे families जो हैं, मूव ऑन टू नेक्स्ट पेज, दैट इज़ पेज नंबर 17, जहाँ पे families जो हैं अपनी generations पे generation spend कर देती हैं किस चीज़ में, furnaces पे work करने में. welding glass, making bangles for all the women in the land it seems. और अगर वहाँ देखें तो ऐसा लगता है कि इस धरती पर रहने वाली ऑलमोस्ट सारी women's के लिए यहाँ पर क्या है, बैंगल्स मेकिंग का वर्क होता है. नाउ मूव ऑन टू दिस पैराग्राफ. योर मुकेश फैमिली इज अमंग देम. नन ऑफ देम know that
it is illegal for children like him to work in the glass furnaces with high temperature in dingy cells without air and light, that the law it enforced could get him and all those 20,000 children out of the hot furnaces where they slogged their daylight hours, often losing the brightness of their eyes. Mukesh I beam as he volunteers to take me home. So what's there here? चिल्ड्रन, मुकेश फैमिली इज़ अमंग देम. मुकेश फैमिली भी उनमें से, मुकेश की फैमिली भी उन्हीं में से एक है जो कि बैंगल मेकिंग बिजनेस में एंगेज है. नन ऑफ देम नो दैट इट इज़ इलीगल फॉर चिल्ड्रन लाइक हिम टू वर्क इन द ग्लास फर्नेसेस विथ हाई टेम्परेचर. और उसकी फैमिली में किसी को भी ये नहीं पता कि इस तरीके की फैमिली में छोटे बच्चों का या इस तरीके के वर्क्स में लाइक ग्लास फर्नेसेस में यहाँ विथ हाई टेम्परेचर्स छोटे बच्चों का वर्क करना इज़ इलीगल. इन डिंगी सेल्स विदाउट एयर एंड लाइट. और ऐसा इलीगल क्यों है? क्योंकि डिंगी मीन्स या द सम स्मॉल कंजस्टेड और ऐसे जो सेल्स रूम्स बने हुए होते हैं छोटे छोटे जिसमें विदाउट लाइट और एयर जो है वर्क करना पड़ता है. That the law, if enforced, could get him and all those 20,000 children out of the hot furnaces where they slog their daylight hours. और अगर जो लॉ है अगर उसके अकॉर्डिंग माना जाए तो 20,000 ऐसे बच्चे जो हॉट फर्नेसेस में वर्क करते हैं या अपना पूरा दिन वहाँ स्लॉग कर देते हैं, ऐसे बच्चों को वहाँ से निकाला जा सकेगा. ऑफन लूजिंग देयर ब्राइटनेस ऑफ देयर आइज. एंड ऐसे काफ़ी बच्चे हैं जो इस तरीके की ग्लास फर्नेसेस में वर्क करने से उनकी आई साइट जो है समय से पहले ही चली जाती है. मुकेश आई बीम एज ही वॉल्टियर्स टू टेक मी होम. और मुकेश की आंखें देखकर राइटर को ये पता चल रहा था कि वो उसे अपने घर ले जाना चाहता है. विच ही proudly says is being rebuilt. We walk down stinking lanes choked with garbage, past homes that remain hovels with crumbling walls, wobbly doors, no windows, crowded with families of humans and animals coexisting in the primeval state. He stops at the door of one such house, bangs a wobbly iron door with his foot and pushes it open. So here मुकेश की आंखों में ऐसा राइटर देख पा रही हैं कि वो उन्हें घर ले जाना चाहता है. विच ही प्राउडली सेज इज़ बीइंग रीबिल्ड. जो कि वो प्राउडली सबको बताता है कि उसका घर जो है वो रीबिल्ड हुआ है. वी वॉक डाउन द स्टिंकिंग लेन्स. बोथ राइटर एंड मुकेश वो स्टिंकिंग मीन्स जहाँ पे बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही है ऐसी लेन्स से या जहाँ पे गार्बेज ही गार्बेज है और चोक्ड लेन्स हैं वहाँ से होते हुए. पास्ट होम्स दैट रिमेन होवल्स विथ क्रम्बलिंग वॉल्स. और पास्ट का जो उसका हाउस था या होम था उसके रूम्स दैट इज़ नॉट फिट फॉर लिव इन बिकॉज they were like very dirty or in very bad condition. And the wobbly doors, like the clumsy doors were there were no windows and crowded with families of humans and animal coexistent. and जैसे प्रिमिटिव लोग रहते थे वैसे ही ह्यूमन्स और एनिमल्स इकट्ठे रहते हैं. ही स्टॉप्स एट द डोर ऑफ वन सच हाउस. और मुकेश ऐसे ही एक घर के बाहर जाके रुक जाता है. बैंग्स अ वुबली आयरन डोर विथ हिज फुट. और एक क्लमजी से आयरन डोर पे अपने फुट से ज़ोर से धक्का मारता है. एंड पुशेज इट ओपन. और उसको खोलने के लिए पुश करता है. व्हेन वी एंटर अ हाफ बिल्ट शैक, इफ वन पार्ट ऑफ इट thatched with dead grass is a firewood stove over which sits a large vessel of sizzling spinach leaves. So मुकेश के घर जब राइटर जो हैं जाती हैं तो वो क्या देखती हैं दैट उसके ऐसे घर में जो हाफ बिल्ट है इन वन पार्ट ऑफ इट थैच्ड विद डेड ग्रास, जिसकी उसकी वन पार्ट में डेड ग्रास रखी हुई थी, इज़ अ फायरवुड स्टोव. सो क्यों? क्योंकि फायरवुड ऐसा स्टोव था जो वुडन स्टोव था जिसमें चूल्हा जैसे आप बोल सकते हैं. ओवर विच इट सिट्स अ लार्ज वेसल सिजलिंग स्पिनिच लीव्स, जिसके ऊपर स्पिनिच लीव्स जो है वो सिजल कर रही थी. मतलब चूल्हे पे कुछ पक रहा था और वो क्या पक रहा था? स्पिनिच लीव्स की सब्जी आई गेस. On the ground, in large aluminium platters are more chopped vegetables. और एल्यूमिनियम के प्लेटर्स में chopped vegetables रखी हुई थी. A frail young woman
इज कुकिंग द इवनिंग मील फॉर द होल फैमिली। और एक पतली दुबली सी लेडी जो है वो इवनिंग मील कुक कर रही थी पूरी फैमिली के लिए। थ्रू आइज फिल्ड विद स्मोक शी स्माइल्स। और ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आंखों में धुआं भर गया है, बट फिर भी वो स्माइल कर रही थी। शी इज़ वाइफ ऑफ मुकेश एल्डर ब्रदर। वो मुकेश के एल्डर ब्रदर की वाइफ थी। नॉट मच ओल्डर इन ईयर्स, शी हैज़ बिगन टू कमांड रिस्पेक्ट एज बहू। इतनी अभी उसकी उम्र नहीं थी कि उसको इस एज में बहू कहा जाए। द डॉटर इन लॉ ऑफ द हाउस। और वो इतनी छोटी उम्र में ही घर की बहू कहलाने लग गई। ऑलरेडी इन चार्ज ऑफ 3 men, उसके ऊपर 3 लोगों को संभालने का चार्ज था। दैट इज़ हर हस्बैंड यानी मुकेश का ब्रदर मुकेश एंड देयर फादर। व्हेन द ओल्डर मैन एंटर्स शी जेंटली विड्रॉज बिहाइंड द ब्रोकन वॉल एंड ब्रिंग्स हर वेल क्लोजर टू हर फेस। एंड व्हाट्स हैपन्स अप देयर कि जैसे ही When the older man enters, she gently withdraws behind the broken wall. जैसे ही फैमिली के एल्डर मैन एंटर होते हैं वो अपना चेहरा जो है ढक लेती हैं और वॉल की तरफ मुंह कर लेती हैं। एज कस्टम डिमांड्स डॉटर इन लॉ मस्ट वेल देयर फेस बिफोर मेल एल्डर्स। सो एक ऐसा कस्टम है जिसके अकॉर्डिंग डॉटर इन लॉज को अपने फैमिली के मेल एल्डर्स के सामने सर ढकना पड़ता है और यस अपना फेस या सर जो है कवर करना पड़ता है। In this case, the elder is an impoverished bangle maker। और इस केस में जो एल्डर हैं वो कौन है? एक बैंगल मेकर हैं। Despite long years of hard labor, first as a tailor, then bangle maker, he has failed to renovate a house। उन्होंने अपनी फर्स्ट जॉब, मुकेश के फादर जो हैं उन्होंने अपनी फर्स्ट जॉब एज अ टेलर करी थी। सेकेंड जॉब उन्होंने बैंगल मेकर की करी एंड फिर भी उनके पास इतना पैसा नहीं था कि वो अपना घर रेनोवेट करा पाएँ या अपने सेंड हिज 2 sons टू स्कूल, अपने 2 बच्चों को स्कूल भेज पाएँ। ऑल ही हैज़ मैनेज टू डू इज़ टीच देम व्हाट ही नोज़। केवल वो एक ही काम कर पाया कि जो उसे आता था वो ही उसने अपने बच्चों को सिखाया एंड दैट इज़ द आर्ट ऑफ बैंगल मेकिंग। सो बेसिकली इन दिस स्टोरी ऑफ द सेकेंड स्टोरी ऑफ द चैप्टर, जो राइटर हैं चैप्टर की वो हमें बताना चाह रही हैं कि किस तरह चाइल्ड लेबर में जो बच्चे होते हैं वो पॉवर्टी या अपनी सिचुएशन के कारण अपनी फैमिलीज़ को भी सेम बिजनेस में एंगेज कर लेते हैं बिकॉज दे डोंट हैव दैट मच मनी टू एडुकेट देयर चिल्ड्रन और टू गिव देम प्रॉपर लाइफ और livelihood. So here students, this video is over of this chapter, that is the Lost Spring second story. Now I will let you know the remaining part of the chapter in your next video. Till then, thank you.